Okay, namaste to all of you. What about my voice quality? Is it fine or do I need to change to some other settings? Hello, what about my voice quality? Is it fine? Okay, great. Gaurav, thank you. So, in last class, what I was discussing, I think, what was the cost of matrix multiplication, right? And we were able to derive that the number of multiplication is equivalent to cost of multiplication. Yep. So, so when I take in that matrix is m cross n order and another matrix B of n cross p order, then number of multiplication are MNP. So this was the takeaway from the last class. So we will proceed further, right? So up to this point of time, if anybody is having any kind of doubt, please discuss it with me. Otherwise, it will be just waste of time for you. So no doubt, it's great. Everyone is comfortable. So I request you, all of you, to have a paper and pen, or rather copy or pen, because we will going to discuss or solve a question, and I will be needing some calculations from your side. Right. So uh, I will take the same question that I have taken last time. So blue is not my favorite today, so I will take red. So matrix A1 is there, A1 with the dimensions of 30 cross 1, and another matrix A2 with dimensions A2 1 cross 40. And A3 40 cross 10. And A4 10 cross 25. Writing with mouse requires a lot of talent, so please bear with me. Now, uh, I have two questions for you. Yeah. आ गया भाई, आ गया. A3, A4, and A1, A2, A3, A4, A4. Right. My two questions to all of you, that whether I can multiply A1, A2, A3, A4 or not. A1, A2, A3 or A4. Yes or no? If yes, then
which multiplication will I prefer, that either option number A or option number B? If no, then why? Why no? My questions are clear, so you people can consider it as a surprise quiz. Uh, I may, I may override one of your surprise quizzes, right? So be attentive. Uh, my two questions are clear. This is a oral. So first question is whether I can multiply A1, A2, A3, A4. If yes, then which multiplication will I prefer? Either option number A or option number B. If no, why not? So those who want to answer can raise your hand or type yes in chat box. So I will ask. Pragati Singh has raised good. Shivani Chauhan has raised good. Two. Shweta 3. आंसर मत करो श्वेता अभी 4. शशांक 4. यश 5. स्मिता ग्रेट और 6. Okay. Great. So yes. Yes, this was just check whether you people are listening or not. So I will ask somebody who have raised their hand. So Swati, can you tell what is your answer? सर ऑप्शन बी। Uh, सर उसका कॉस्ट ऑफ टाइम कम लगेगा। मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहला पार्ट तो आपका ही है ना। यस सर। स्वाति का कहना है मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऑप्शन बी। ग्रेट, चलो अभी चेक करेंगे थोड़ी देर में। और कोई इससे डिफर आंसर करना चाहता है? हो सकता है बाकी लोग सही हो, ये गलत हो। सबका आंसर यही है, मतलब अगर मिलेगा तो सबको 0 मिलेगा, नहीं तो सबको फुल मिलेगा। किसी का डिफरेंट आंसर? सर चूजमेंट इन्हीं दोनों में से करना है ना, जो ऑप्शंस आपने दिए हैं? नहीं, मेरा क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये कह सकता है, पूछ रहा हूं मैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तब ये बात आती है ऑप्शन ए या बी। अगर नहीं कर सकता हूं तो ये ऑप्शन खारिज हो जाते हैं सिरे से, हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। अब समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो अपना व्यू रखिए, दूसरे पे मत जाइए। मेजोरिटी इज ऑलवेज ऑफ फूल्स। सो जो सब सोच रहे हैं जरूरी नहीं वही सही हो। हम लोग कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे क्या होगा। चलिए, अच्छा, जिन्होंने कहा कि ऐसा करना चाहिए, तो मैं किसी एक से रीजन जरूर जानना चाहूंगा। मैं सेलेक्ट करता हूं किसी को भी। स्वाति से मैं पूछ चुका। शिवानी, आप बताइए, अगर आप इससे एग्री करते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऑप्शन बी है, तो क्यों ऐसा? इसका कोई लॉजिक तो हमें बताना पड़ेगा। शिवानी बताइए। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन सर बी ऑप्शन में कम लगेंगे एज कंपेयर टू 1, तो सर कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट हमारा टाइम का कम हो जाएगा। नहीं, मतलब पहला तो क्वेश्चन ये कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं दोनों को। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरा अभी क्वेश्चन ये क्यों कर सकते हैं? सर क्योंकि सर जैसे मतलब मल्टीप्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, सो सर दैट्स व्हाई वी कैन मल्टीप्लाई। अरे ऐसे देखो ना, आप सही बोल रहे हो, मतलब बाकी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ओके सर। क्या हो जा रहा है? ये 30 क्रॉस 1 है A1,
तो A2 को 1 क्रॉस एनीथिंग होना चाहिए ना, तो A1 A2 कर सकते हैं। तो A1 A2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एनीथिंग क्रॉस 40 आएगा, तो एनीथिंग क्रॉस 40, तो A3 को 40 से शुरू होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही आप भी कहना चाह रहे होगे ना। यस सर। ठीक है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस बात में हमें कोई डाउट नहीं बचा, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हैप्पी। अभी दूसरा पार्ट आता है कि हम ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे, तो हम कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन मुझे फर्स्ट वाले में ऑप्शन में मदद, आप भी बोल रही हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में मदद करिए। ए की डायमेंशन 30 क्रॉस 1 है, और अरे भाई माउस से लिखना पाप है, 1 क्रॉस 40 है। ठीक है, तो A1 A2 की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 30 क्रॉस 40, राइट। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन A1 A2 को जब करेंगे तो इतने तो आएंगे ही आएंगे, MNP। तो हम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखते चल रहे हैं, यहां लिख लो, ग्रीन से लिख रहा हूं, तो ये होगा 1200, राइट। प्लस A3 A4 को मल्टीप्लाई करो, A3 की 40 इंटू 10 है, 40 इंटू 10 है। A4 की कितनी है? 10 इंटू 25। शिवानी आप मेरी हेल्प कर रही हैं, बोलते रहिए, ठीक है। यस सर। तो A3 A4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हो जाएंगे? 40 इंटू 25 इंटू 40 10। into 10 into 25। क्या आया ये? वैल्यू क्या आई? 100, 10,000, 1000 एंड 10,000, यही है, चेक कर लो। 25 इंटू 4 100 होता है, एक जीरो Yes, sir. 1000 हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ा दो 10,000 हो जाएगा, चेक कर लो। मैं माउस से लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग चल नहीं रहा, राइट। तो ये जो A3 A4 जो नई मैट्रिक्स आएगी, इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? 40 इंटू 20, राइट। A1 A2 एक मैट्रिक्स है, A3 A4 एक मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सर 40 into 25 होगी। 40 इंटू, हाँ ये 25 है, सॉरी यार, सॉरी वेरी सॉरी, देखो माउस से लिखने का गुनाह। 40 इंटू 25, राइट। तो 30 क्रॉस 40 मैट्रिक्स को 40 इंटू 25 से करेंगे तो इसकी भी कॉस्ट आएगी, MNP 30 इंटू 40 इंटू 25, राइट। शिवानी आंसर बोलो। 1200 प्लस 10,000 प्लस दिस 13. ये फिर 1000 आया, 1000 को 30 से मिला 30,000 आया, राइट। 40,000 41,200, चेक करो सही है, यही आ रहा आपका भी, चेक कर लो सब लोग। Yes, sir. यस सर। ठीक, चलिए, इसकी हमने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन Yes, sir. निकाल ली। दूसरे वाले के भी निकाल लेते हैं, ओवरलैपिंग लिखेंगे एक के ऊपर एक, तो कलर बदल लेते हैं। तो पहले A2 A3 मल्टीप्लाई होगा, A2 है 1 इंटू 40 और 40 इंटू 10, तो A2 A3 की कॉस्ट हो जाएगी 1 इंटू 40 इंटू 10, ठीक। और अच्छा, इसमें एक ब्रैकेट और लगाना था, इसको ऐसे कर लो, नहीं तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर भी आप लोग बता ले रहे थे, गुड। फिर जो ये नई मैट्रिक्स आई 1 इंटू 10 की, इसको हम A4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1 इंटू 10 इंटू 25, 1 इंटू 10 इंटू 25, चेक कर लीजिएगा गलत तो नहीं हुआ। 1 इंटू 10 इंटू 25, राइट। प्लस A1 को मल्टीप्लाई करोगे, A1 30 क्रॉस 1 है, और ये क्या होगा? 1 क्रॉस 25 होना चाहिए,
30 into 1 क्रॉस 25, इसकी वैल्यू क्या आई? बोलो भाई। 1400। ग्रेट, 1400 आई। तो भाई समझदार आदमी यही वाला मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट करेगा। क्यों? इसमें आपकी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट कम आ रही है, राइट। तो ये रैंडम कोई डिसीजन में नहीं ले सकता। मैंने आपको एक दिन आपको बाइनरी सर्च का एग्जांपल भी दिया था, किसी ट्यूट में दिया था कि किसी क्लास में दिया था, मुझे याद नहीं। बाइनरी सर्च क्लियर है सबको? मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, रैंडम एकदम से मेरे दिमाग में आ गया। हाँ या ना बोलिए। यस सर। 100%। चलिए, तो उसमें मैंने आपसे एक नंबर गेस करने को कहा था, तो आपने नंबर गेस किया था, तो मैंने कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में बता दिया था। तो कोई जादू नहीं है, एवरीथिंग इज एल्गोरिथम। तो यहाँ पर भी मैं इस मैसेज को कन्वे करने का मीनिंग है कि यहाँ पर भी कोई जादू नहीं है कि हम ये मल्टीप्लिकेशन लेंगे या ये वाला मल्टीप्लिकेशन लेंगे। एवरीथिंग हैज अ रीजन। यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कम लग रहे हैं, इसलिए हम ये वाला मल्टीप्लिकेशन, ये वाली पैरेंथेसिस लेंगे। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है तो हमसे डिस्कस कर लीजिए। चैट में कुछ आया है, मैं देख लेता हूँ। ये सब देर से जागने वाले हैं, कर्ष कुमार सिंह और राइट। कुछ डिस्कस करना है किसी को यहाँ तक? साइलेंस मीन्स ओके। सो हम आगे चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव, अरे भाई सेव रहो, कहाँ कूद रहा है। देन क्लियर, राइट। अभी हम अपने क्वेश्चंस को, अपनी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कुछ अलग तरीके से लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे एक मैट्रिक्स चेन गिवन है, मैट्रिक्स चेन, मैट्रिक्स चेन, ठीक है। मैट्रिक्स चेन में A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं AI होगा, डॉट 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 AN-1 और AN। ठीक है, ये मैट्रिक्स की एक चेन दी है, जहां पर AI की डायमेंशंस हम कह रहे हैं Pi-1 इंटू Pi है। ठीक है, अगर हम AN की डायमेंशंस लें तो क्या होगा? Pn-1 इंटू Pn। A1 की डायमेंशन लें तो क्या होगी? ठीक है, ये हम कैसे देख रहे हैं? हम इस कन्वेंशन से देख रहे हैं, जो I है, बाद वाला वो I है, उसके पहले वाला I-1 है। डन, क्लियर हो गया? तो अगर चेन दी है और ith मैट्रिक्स की डायमेंशंस मैं कह रहा हूँ ये कन्वेंशन फॉलो करूंगा, तो किसी भी मैट्रिक्स की डायमेंशन निकालने का हमारे पास तरीका अवेलेबल हो गया, राइट। सो इसको भी मैं सेव करता चलता हूँ। क्लियर। अभी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? वी हैव टू फाइंड द बेस्ट वे भाई माउस से लिखना, find the best way to parenthesize a set of matrices, करेक्ट। ये भी प्रॉब्लम हम लोग को क्लियर होगी, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। हमने डे 1 आपको ये दिखाया था कि अगर दो मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। फिर मैंने आपको छोटे छोटे एग्जांपल से समझाने की कोशिश की
कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, मैट्रिक्स की डायमेंशंस क्या हो सकती हैं। अभी मैं अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूँ। नाउ आई हैव टू फाइंड द बेस्ट वे टू पैरेंथेसाइज द गिवन सेट ऑफ मैट्रिसेस। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा एज एन इंटेलिजेंट पर्सन ये जरूर करना चाहेंगे इससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट कम से कम हो। राइट, क्लियर? बोलिए। राइट, तो हमें ये क्लियर है सबको? चलिए, चलिए मैं अब अच्छा, इसको मैं करूंगा कैसे? मैं इसको ऐसे करूंगा कि मान लीजिए A1 से लेकर AJ तक आपको, AI से लेके AJ तक आपको चेन दे रखी है। मैं और जनरल बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि हमें कुछ पता होता तो है नहीं, तो हमने कहा कि ये जो मैट्रिक्स हो गए उसको हम पैरेंथेसाइज कर लेंगे। ठीक है, और अगर ये kth है तो ये अंग्रेजी में k+1 होगी, डॉट 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 डॉट। राइट, तो हमने कहा कि पैरेंथेसाइज करने के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम एक एक के को चेक करेंगे। पहले के की वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे। जहां पर कॉस्ट मिनिमम आ जाएगी वो हमारे मतलब का के हो जाएगा। राइट, ये अप्रोच हम फॉलो करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक अच्छा, इसकी डायमेंशंस की बात कर लें। तो AI की डायमेंशंस क्या होंगी? कोई मेरी हेल्प करे? Pi-1 इंटू Pi। AK की डायमेंशंस क्या होंगी? Pk-1 और Pk। और इसकी क्या होंगी? Pk इंटू Pk+1। और लास्ट वाले की क्या होंगी? Pj-1 इंटू Pj। ये क्लियर है सबको? होना ही चाहिए, इसमें कोई है ही नहीं। तो जो ये मैट्रिक्स मान लो, मैं इसको अपने समझने के लिए P1 बोल दे रहा हूँ। 2 पार्टिसिपेंट रेज देयर हैंड्स। कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछिए। इसको P2 बोल दे रहा हूँ। तो जो P1 की डायमेंशंस क्या होंगी? Pi-1 और Pk, कुछ ऐसे ही तो होंगी। P2 की क्या होंगी? Pk इंटू Pj। राइट, तो जब हम P1 और P2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? Pi-1 MNP, Pi-1 Pk। देखिए एक बार इस लॉजिक को देखिए, कोई डाउट हो तो हमसे पूछिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग कॉपी पेन लेके लिख रहे होंगे। कंफर्टेबल? आगे चलें, किसी कोई डाउट? उत्कर्ष कुमार सिंह, व्हाट इज P? सो रहे थे क्या तुम? सर ये ध्यान में नहीं है सर, पी कहाँ से आ गया? मतलब स्टार्टिंग की क्लास अटेंड नहीं की है।
कोई बता दो पी है सर। भाई। पी पूछने का मतलब तो यही है, इतनी देर से अगर मैं पी पर डिस्कशन कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में पी बता चुका हूँ। कोई इनको बता दो पी क्या है। सिमरन व्हाट इज पी? आप रिपीट कर दीजिए जरा। सब भाग गए सो लॉगिंग करके क्या? नहीं सर, सर वो सर P1 P2 उसको माना है ना आपने, ए जे से ए के वाले जो टर्म्स थे उसको ये P1 माना है। उत्कर्ष ये पूछ रहा है ये पी क्या है, ये वाला पी क्या है? इसको ये पी में हवा नहीं लग रही है, क्लास में शुरू में होगा नहीं। पी ना समझ में आने का यही तो मतलब है। अरे ये आयत मैट्रिक्स की डायमेंशन नहीं थी, आयत मैट्रिक्स की पी आई माइनस वन इंटू पी आई। सब सो रहे हो मतलब, ठीक है। अगर हमने चेन ली थी, स्लाइड क्या वापस ला सकता हूँ, मेरे को दिखाता हूँ। एक मिनट में दिखा रहा हूँ आप लोग को। शेयर कहाँ गया? जब मैंने इसकी मैट्रिक्स चेन ली थी तो मैंने क्या बोला था कि आयत मैट्रिक्स की डायमेंशन पी आई माइनस वन इंटू पी आई है। तो जो पहली मैट्रिक्स ए आई होगी तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी? पी आई माइनस वन इंटू पी आई। तो लास्ट वाली मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी? पी के माइनस वन इंटू पी के। और इसकी क्या हो जाएंगी? पी के प्लस वन, उससे पहले वाली पी के, और लास्ट वाली की पी जे इंटू पी जे माइनस वन। राइट। उत्कर्ष अभी क्लियर हुआ पी क्या है? सर ये तो क्लियर है सर, मतलब वो आया कहाँ से, मतलब आपने अपने से कुछ भी आर्बिट्रेरी चीज ली है या मतलब वो नहीं, मैं तो बनाया मैंने हुआ है? अगर तुम ये पूछोगे ये पी कहाँ से आया, तो मैं तुमसे पूछूंगा ए वन ए टू कहाँ से आया। सर वो नहीं एकदम से आपने लिख दिया ना पी आई माइनस, वो नहीं तो समझ एकदम में से आ नहीं गया कि लिखा, वो एकदम से नहीं लिखा। मैंने लिखा था कि जो ए आई मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशंस पी आई माइनस वन इंटू पी आई है। अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसकी डायमेंशंस होंगी, वहां एम एन बोल लेते हैं। यहाँ पर हम आई के साथ रिलेट करके चल रहे हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? हेलो बोलो। यस सर। और किसी को डाउट पी में? क्लियर करते चलिए, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आई जे के पी आई जे समझ में नहीं आया तो छत पे जाने वाला तरीका काम नहीं आएगा। आप लेके जाओ किताब आई जे के और नीचे उतरोगे आई जे के हो जाएगा। हो चुका। हो नहीं सकता, रट के नहीं हो सकता ये, अगर समझ नहीं सकते। राइट। तो अभी भी जिसको डाउट हो प्लीज डू डिस्कस इट विद मी, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। जब मैं अगला स्टेप करूंगा तो मुझे पूछोगे आई कहां से आया, जे कहां से आया, तो गोली मार दूंगा। राइट, जिसको भी डाउट है प्लीज डिस्कस करो मुझसे। सर ये पी आई माइनस वन क्रॉस पी के ये क्लियर कर दिया। अच्छा, ये जो सीरीज है, ये जो मैंने पैरेंथेसिस लगाई है ये वाली, ये देखिएगा, ठीक है। इसमें पहली मैट्रिक्स है ए आई। हाँ या ना बोलते चलो। यस सर। तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? पी आई माइनस वन क्रॉस पी आई। लास्ट वाली बीच में हमें नहीं मालूम क्या है अंग्रेजी। लास्ट वाली क्या होगी? पी के माइनस वन इंटू पी के। यस सर। ठीक है। जो ये सब मल्टीप्लाई होकर जब फाइनल आएंगी तो पहली वाली और लास्ट वाली यही तो आएगी जो डायमेंशंस बचेंगी। सर लेकिन इसमें एम या एन कॉमन तो है। नहीं, हम उससे मतलब ही नहीं है। हमने अभी चार मैट्रिक्स दिखाई थी तुम्हें, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ठीक है। यस सर। ए वन की क्या डायमेंशन है, ए टू की क्या है, ए थ्री की है, ए फोर की क्या है। अगर वो मल्टीप्लाई हो पा रही है तो फाइनल पे जो रिजल्ट आ रही थी उसकी डायमेंशंस क्या होगी? जो पहली वाली मैट्रिक्स का पहला होगा, जो लास्ट वाली मैट्रिक्स का लास्ट होगा। तो यही तो हमने लिखा कि जो ये यस नई ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी डायमेंशंस पी आई माइनस वन इंटू पी के होगी। बोलो। यस सर। ठीक नहीं जो मुझसे Yeah. पूछ रहा था मैं उससे पूछ रहा हूँ, ठीक है बोलो।
होगी। यस सर, ठीक है। इसी तरह से इसकी क्या होगी, पीके से शुरू हो क्या लास्ट में पीजे तक जा रही है, तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, पहली वाली और ये लास्ट वाली, पीके इंटू पीजे। डन। अरे बोलो भाई। यस सर। तो जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, एम एन पी। एम क्या है, पी आई माइनस वन। एन क्या है, पी के। पी क्या है, पीजे। नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन पी आई माइनस वन, पी के और पीजे। हुआ। हुआ। अरे भाई कोई जवाब दे दो मुझको। सर इस पूरे में हम लोग ये Yes. हाइपोथेटिकली मान के चल रहे हैं कि जितनी भी मैट्रिसेस है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये हम हाइपोथेटिकली मान के चल रहे हैं। हाइपोथेटिकली मान के नहीं चल रहे हैं, मैट्रिक्स चेन ही वही होंगी जो मल्टीप्लाई होंगी। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि अच्छा, मतलब फिर बात समझिए, अगर अगर वो चेन में समझ नहीं है गए तो सर, हम समझ पैरेंथेसिस गए, क्यों लगाएंगे भाई मेरे। समझ गए, समझ गए, ठीक नहीं है नहीं, सर। अभी तुम्हें और समझाएंगे, रुको। नहीं नहीं, समझ गए। ठीक है ना, अगर वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती तो हम पैरेंथेसिस लगाने क्यों जाएंगे भाई मेरे, बात समझ गए ना। अगर वो मल्टीप्लाई हो सकती है तभी तो हम पैरेंथेसिस की बात करेंगे। तो अभी तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पैरेंथेसिस लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप पैरेंथेसिस लगाएंगे तभी जब वो मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ दिमाग पे कभी प्रेशर नहीं लेना चाहिए। विदाउट प्रेशर करंट सिचुएशन में जियो। अभी तुम इस समय बैठ के अगर क्विक शॉट सोचोगे तो हो गया। ठीक है, बात समझ गया मैं पॉइंट क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर है सबको, बोलिए ये क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. यस सर। पूछ लीजिए, अभी भी पूछ लीजिए, क्योंकि कल मैं जब इसको यूज करूंगा, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, तब मैं कह दूंगा अब सॉरी मुझे नहीं आता, मैं बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बार बार ये चीजें डेवलप करके सिखाना आसान नहीं होता है। ठीक है, कंफर्टेबल, किसी को भी डाउट हो मुझसे पूछ लीजिए अभी। चलिए मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अगर अभी ये कुछ चैट में आया, देखें भाई क्या आया। अरे सिद्दीकी साहब क्या क्या लिख दिया 93, ये क्या है, रोल नंबर कहाँ, क्या लिखने का मतलब है भाई इस समय। अच्छा, मतलब तुम चेक कर रहे हो कि तुम टाइप कर पाते हो कि नहीं चेक कर। चलो, चलिए। अच्छा, अटेंडेंस कौन देगा आज मुझको, एब्सेंट लिस्ट। उत्कर्ष तुम दे चुके हो, तन्वी तुम भी दे चुकी हो, सृष्टि आप दे चुकी हो अटेंडेंस। हेलो। 120 विकास, मैंने आपसे नहीं लिया गया, 120 विकास आप मुझे देंगे आज अटेंडेंस। इज इट फाइन विद यू। ओके सर। मुझे एब्सेंट लिस्ट चाहिए होती है यस ना, सर। अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, ओके सर। जो जो आप कहेंगे मैं मान लूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंफर्टेबल। Okay, अभी डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज रिकनेक्ट हो जाइएगा, मैं इक्वेशन बना के आज खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, 5-7 मिनट और लगेगा। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट हो जाने दीजिए, फिर रिकनेक्ट करके मैं इक्वेशन बताता हूँ।